Assalamu alaikum, everyone. This is me, Amreen, and I've been working as an academic professional for the last 16, 17 years. And in these many years, I've seen many students who have come to me and many parents who have come to me with so many different issues um in which somehow they were unable to communicate with each other, and the conflicts were generating in the family, and there were rifts between parents and students at all ages, starting from a toddler up to a teenager. And being a mother of two myself, one of my child is a teenager and the other one is 8 years old. They also have their different needs. So, in order to understand motherhood, I also did some research and digging, and then I spoke to my good friend Hina, and we came up with a solution that can not only benefit me, but so many other parents who are listening to us right now and who are going through the same thing that I'm going through. Um, every age, every child is different, every age is different, every parent is different, every family is different, even our culture is different from the West. So, whatever we see on the internet nowadays of how to raise your children, it's basically a Western based understanding or whatever you can say. सो अब हमारे माशरे में रहते हुए, हमारे जैसे घरों में रहते हुए, हमारे जैसी फैमिलीज में रहते हुए, कल्चर में रहते हुए, कैसे हम बच्चे को, एक ऐसे बच्चे को जो जेन जी से ताल्लुक रखता है, जो जेन अल्फा से ताल्लुक रखता है, उसको हम उसका ब्रॉटअप कर सकते हैं इन अ वे दैट ही बिकम्स अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन and a good human being who is respectful to his elders and to the society in general. और उससे हमारे पेरेंट्स और उनमें कोई ऐसी रिफ्ट भी ना जनरेट हो, और एक अच्छी फैमिली वैल्यूज हम उनके अंदर किस तरीके से डाल सकते हैं. तो आज मेरे साथ हिना है. मिस हिना इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट with over 7+ years of experience working as a student parent counselor in an academic setup. She is also an internationally certified NLP practitioner and coach, facilitating people in overcoming mental health issues and helping them to take charge of their lives. Welcome, Hina. Thank you so much, Amreen. How are you doing? I'm good. How are you? Alhamdulillah, great. So, Hina, as we discussed earlier, the topic that we have chosen for today, the basic topic, the foundation topic, and that is permissive parenting. So, kindly tell us in a very detailed manner, what basically is a permissive parenting. Yes. So before I start off with the permissive parenting style, I would like to say that the sole purpose of this conversation is to provide support to all the parents out there and to all the children out there. We are not here to criticize, but to provide support. Okay, so I'm jumping onto the topic directly now. Permissive parenting, and why we have chosen this specific parenting style over the other parenting style which are also present. The reason is that this specific parenting style is the one which is most prevalent at this time in our country, Pakistan. So what happens in this parenting style? Now, the parents of today, what they feel like when they are providing nourishment, nurturance, and when they are upbringing their children, they are providing a lot of support to their children, which is good. They are very responsive towards their children, which is again very good. There is no harm in that. So the parenting style today is like, आप बच्चे को बहुत ज्यादा वार्म प्रोवाइड कर रहे हो, बहुत ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हो, बहुत रिस्पॉन्सिव हो अपने बच्चे की नीड्स की तरफ. लेकिन इसके साथ साथ आप नीड्स के साथ साथ बच्चे की डिजायर्स में भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो. उससे क्या होता है, अब मुझसे कोई पूछे कि रिस्पॉन्सिव होना तो बहुत अच्छी बात है जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितना रिस्पॉन्सिव होना है, कब कब रिस्पॉन्सिव होना है, कब कब रिस्पॉन्सिव नहीं होना, या कब कब कम रिस्पॉन्सिव होना है, वो देखना जरूरी है. आजकल के पेरेंट्स जो चैलेंज फेस कर रहे हैं वो इस वजह से कर रहे हैं
कि वो अपनी रिस्पॉन्सिवनेस को कम नहीं करते. इनफैक्ट दे हैव दिस अर्ज, दे हैव टू meet the expectations of their child no matter what, or even when it is not required, or even when they don't need to. उस वक्त भी वो अपनी रिस्पॉन्सिवनेस टुवर्ड्स देयर चाइल्ड फुलफिल कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर ये अर्ज डेवलप हो जाती है कि अगर हम अपने बच्चे को नो बोलेंगे तो हम अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं. तो the type of guilt that starts coming, they start coming up with, कि हम गिल्ट में चले जाते हैं अगर हम अपने बच्चे को नो बोल दें. दूसरी तरफ बच्चे को नो क्यों नहीं बोलना, हमारा बच्चा बहुत सेंसिटिव है. ये आपने एकेडमिक सेटिंग में बहुत देखा होगा. ये वर्ड आजकल बहुत यूज हो रहा है, पेरेंट्स यूज कर रहे हैं फॉर देयर चिल्ड्रन, कि हमारा बच्चा हम्म। बहुत सेंसिटिव है, वो बहुत जल्दी परेशान हो जाता है, वो बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है. उसका रीजन क्या है कि आप इतने ज्यादा परमिसिव हो, इतने ज्यादा गिविंग एंड पे हो, कि आपको नो कहना अब मुश्किल लग रहा है. मेरा जब मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, पेरेंट्स आते हैं अपने इश्यूज लेके, तो मैं उनसे यही पूछती हूँ कि आप इस सब सिनेरियो में कैसे फंसे. तो वो मुझे ये कहते हैं कि जब हमारे बच्चे ऑब्वियसली पैदा हुए, पहला बच्चा पैदा हुआ, तो हमें लगा वी हैव टू बी द बेस्ट पेरेंट्स. उसके लिए हमें अपने बच्चे को हर चीज प्रोवाइड करनी है. तो हम अपने बच्चे को देखते थे कि उसके पास दुनिया की हर चीज हो, हम उसको हर तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करें और उसके साथ फ्रेंड बन के रहें. तो मेरा उनसे एक सिंपल सा सवाल होता है, क्यों? वहां पे आके वो थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं या चुप हो जाते हैं. ऑब्वियसली मी एज ए काउंसलर, आई नो कि ये इतनी अच्छी बात नहीं लगती है, लेकिन पॉइंट ये होता है कि आपने पेरेंट्स को थोड़ा सा स्टिमुलेट करना होता है, तो इनटू थिंकिंग कि सारा प्रोसेस क्या चल रहा है. सो नाउ जब आप इस स्टेज पे आ जाते हो कि आपने बच्चे को नो नहीं बोलना, बच्चा हर्ट हो जाएगा, तो एक पैटर्न डेवलप हो जाता है. whenever there are two people in the relationship, it's like in the parenting relationship, एक गिविंग एंड पे चला गया, पेरेंट्स गिविंग एंड पे चले गए, बच्चा टेकिंग एंड पे चला गया. बच्चे का इसमें कोई कसूर नहीं है. जब बच्चा पैदा हो रहा है, वो सिर्फ अपनी बेसिक इंस्टिंक्ट्स के साथ पैदा हो रहा है. अब वो सारा ये बिहेवियर सीख रहा है कि मेरी अम्मी और अब्बू जब भी मुझे कोई चीज चाहिए होती है, वो मुझे फौरन प्रोवाइड करते हैं. अगर वो मुझे नो भी कहते हैं तो उस नो पे कायम नहीं रहते. मैं अगर रोता हूँ, मैं चिल्लाता हूँ, मुझे वो चीज मिल जाती है. तो चाइल्ड लर्न्स कि अगर मैं टैंट्रम थ्रो करूंगा, अगर मैं रोऊंगा, या अगर मैं थोड़ा बुरा मनाऊंगा, तो मेरे पेरेंट्स मुझे वो नो कहने के बावजूद चीज प्रोवाइड कर देंगे. इससे क्या होता है कि बच्चे के अंदर एक तरह की सेंस ऑफ इररिस्पॉन्सिबिलिटी कह लें या लैक ऑफ डिसिप्लिन कह लें, वो डेवलप होना शुरू हो जाता है. इनफैक्ट इट इज वन ऑफ द फीचर्स ऑफ परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल कि आपके बच्चे के अंदर इनडिसिप्लिन आ जाएगा, स्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा. वाई? बिकॉज पेरेंट्स से नो, बट दे आर नॉट एबल टू कीप अप विद दैट नो. तो ये इस तरह के पैटर्न्स जब डेवलप होते हैं, तो प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं. ऑब्वियसली द चाइल्ड इज गोइंग टू ग्रो अप, so even the parents are going to grow up with the child. So this is जैसे how it is. Yes. फॉर एग्जाम्पल आजकल जैसे एक चीज हमने देखी है, बच्चे बहुत ज्यादा डिवाइसेस को यूज करते हैं, ठीक है. Hmm. सो व्हाट हैपेंस इज कि हम सुनते हैं इधर उधर से, तो हमें एक अवेयरनेस आती है कि बच्चों को इतनी ज्यादा डिवाइसेस नहीं देनी चाहिए, या उनका टाइम होना चाहिए डिवाइसेस देने के लिए. फिर होता क्या है कि हम बच्चों को एक दिन अचानक से हमें ख्याल आता है और हम कहते हैं नहीं नहीं, अब हमारे बच्चे को हमने लिमिट करना है, डिवाइस टाइम लिमिट करना है. और फिर क्या होता है, क्योंकि हमारे बच्चे को उसकी आदत नहीं होती, तो वो रोना डालता है, वो मतलब एक टैंट्रम थ्रो करता है बहुत बुरे तरीके से. और होता क्या है कि हम अपने पीस ऑफ माइंड के लिए कि यार अब ये रो रो के मेरा दिमाग खाएगा बच्चा, या मुझे तंग करेगा, या वो रो रहा है तो मेरी नर्व्स डैमेज हो रही हैं. सो व्हाट आई विल डू इज आई विल गिव इन एंड आई विल गिव हिम द टैब. और मैं उसको बोलूंगी, यार मैं खुद गिव इन कर दूंगी, और मैं कहूंगी अच्छा यार ये ले लो अपना टैबलेट, ये ले लो अपनी डिवाइस, चुप करके बैठ जाओ, रो नहीं. सो यही है ना कि आपको व्हेन यू से, तो उसमें बच्चे को ये होता है. अब ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे लगता है हैबिट्स में कन्वर्ट हो जाती हैं. जैसे मैंने एक एग्जांपल पहले भी तुमसे डिस्कस की थी, वो कि इस तरह से था, मैं अपने बेटे को अम्मी के घर लेके जाती थी, छोटे वाले को. तो उसको क्योंकि वहां बहुत वो लाड प्यार और सब कुछ है और कजिन्स हैं,
तो घर वो वापस नहीं आना चाहता था। तो जब मैं उससे कहना कि चलो लेट्स गो मुस्तजाब, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो, मैं उसको बोलती रहती थी, उसकी कान पे जूं तक नहीं हिलती थी। वो अपना बैठा रहता था आराम से। हम्म, और फिर जब फाइनली मैं तंग आके उसको जबरदस्ती चलने के लिए कहती थी, तो एक टैंट्रम होता था वहां, एक रोना धोना होता था, मैंने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना। तो बहुत टाइम ऐसे मैंने किया है कि मैंने मुझे क्योंकि इतनी मुझे समझ नहीं थी कि हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, बिकॉज माय अदर चाइल्ड हु इज अ टीनेजर राइट नाउ, उसको वो कभी इस तरह के टैंट्रम्स नहीं थ्रो करता था। तो मुझे ना, मेरे लिए ये सिचुएशन अपने दूसरे बच्चे के साथ बिल्कुल नई थी कि अच्छा ये टैंट्रम अगर वो थ्रो कर रहा है तो व्हाट एम आई सपोज टू डू। तो मैं क्या करती थी कि मैं उसको ना अपने आसानी के लिए, मैं और उसकी बात भी रखने के लिए कि अच्छा मेरा बच्चा हर्ट ना हो, अच्छा तुम इधर रहो, तो वो फिर उसको उसकी नानी जो है वो ड्रॉप करा देती थी बाद में। फिर मैंने इवेंचुअली नोटिस करना शुरू किया कि ये चीज उसने अपने पैटर्न में बना ली है कि वो रोएगा, वो एक चीखना शुरू करेगा, तो मैं गिव इन कर देती थी हमेशा। तो फिर मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया। फिर मैंने ये किया कि जब मैं उसको लेके जाती हूँ तो मैं उसको पहले तो जाते हुए भी मैं उसको प्रिपेयर करती हूँ, सारा मैं उसको डिटेल बताती हूँ, प्रिपेयर करके लेके जाती हूँ कि हम जाएंगे, कहीं पे भी हमने जाना हो रिगार्डलेस, हमने इतनी देर के लिए जाना है, हमने वहाँ खाना खाना है या नहीं खाना है, जो एक्सप्लेन मैं उसको कर सकती हूँ मैं करती हूँ। और फिर मैं उसको साथ ये भी बता देती हूँ कि हम 2 आवर्स के लिए जा रहे हैं या 3 आवर्स के लिए जा रहे हैं। फिर जब वापसी का टाइम होता है उससे भी मैं उसको 5 या 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले उसको मैं एग्जैक्ट टाइम बता देती हूँ कि 10 मिनट, 10 minutes and we are leaving. So he knows in his mind, and after 10 minutes when I tell him that okay Mr. Jha, 10 minutes are over, we need to leave, तो वो आराम से चल पड़ता है। हम्म, तो कहने का मकसद ये, आई थिंक दिस इज व्हाट आई, दीज आर 2 एग्जांपल्स दैट आई वांटेड टू गिव। आपने जो भी बातें की हैं हम्म। उससे उसके अकॉर्डिंगली जो मैंने रियल लाइफ में फेस की हैं और फिर मैंने उनको इम्प्लीमेंट किया है, तो मुझे उससे कितना फायदा हुआ। एग्जैक्टली। सो बेसिकली हमने करना यही है। और जो अभी एग्जांपल आपने दी उसमें जब फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम आपने एक्सरसाइज किया होगा कंट्रोल ओवर द चाइल्ड, आई एम श्योर कि आपको थोड़ी दिल में गिल्ट वाली फीलिंग्स आई होंगी जब बच्चे ने टैंट्रम थ्रो किया होगा, बुरा लगा होगा, खैर है कोई बात नहीं, वो तो बच्चा है, मैं तो बड़ी हूँ। द पॉइंट इज हम्म। कि ये चीजें करना क्यों जरूरी है। हम बच्चे के पेरेंट्स बच्चे के दुश्मन नहीं है, बच्चा भी पेरेंट्स का दुश्मन नहीं है। दे आर वन वन पार्टी। उसमें क्या है कि पेरेंट्स नीड टू होल्ड द अथॉरिटी। वाई? क्योंकि वो बच्चे को परवान चढ़ा रहे हैं, वो बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, बच्चे को नहीं पता। बच्चा एक क्लीन स्लेट के साथ आया है, आप उसमें जो जैसे रंग भर दोगे वो वैसा ही हो जाएगा। वो जो सोसाइटी से पिक करेगा वो तो थोड़ा बड़ा होके करेगा, लेकिन जब हम छोटे बच्चे की बात कर रहे हैं उसके लिए सबसे पहला सोशल इंटरेक्शन उसके पेरेंट्स के साथ है, उसके घर के लोगों के साथ है। तो वहां टू पे टू आपको सेवन ईयर्स डिसिप्लिन 2 to 7 years में आपके बच्चे का प्रॉपर एक जो उसका बेसिक नेचर है ना वो डेवलप हो जाता है। हो जाता है, बिल्कुल। तो उसमें 2 to 7 years में बच्चा कहाँ इंटरेक्ट कर रहा होता है? 2 years, 3 years, 4 years वो बच्चा घर पे हाँ। होता है। घर में माँ बाप। पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, और चाचा फुप्पो जो भी है वो हो सकते हैं, घर के लोग बेसिकली। लेकिन हम यहाँ स्टिक करेंगे अभी फिलहाल सिर्फ पेरेंट्स की तरफ। तो हम्म, बच्चे को जो आप सिखा रहे हो वो पेरेंट्स सिखा रहे हैं। हम्म, इसमें जो एक और बात आती है परमिसिव पेरेंटिंग में, बच्चे जब पेरेंट्स ये फील करते हैं कि हमें नो नहीं कहना और वो गिल्ट में जा रहे होते हैं, बच्चा क्या सीख रहा होता है कि मैं टैंट्रम थ्रो कर रहा हूँ, मुझे मेरी बात पूरी हो रही है, तो वो एक पैटर्न उसका डेवलप होगा। जैसे अभी तुमने शेयर किया कि बच्चे का पैटर्न डेवलप हो गया कि मैं रोता हूँ धोता हूँ तो अम्मी मुझे छोड़ देती हैं और फिर नानी आती है वापस घर छोड़ने के लिए। तो ऑब्वियसली उसने सीख लिया, लेकिन उसने ये भी सीखा व्हेन यू मेड द चेंजेस, उसने वो भी सीख लिया। हम्म। उसमें क्या हुआ कि सिर्फ थोड़ी देर फर्म होना पड़ा। डिड यू फील हम्म। आफ्टरवर्ड्स कि बच्चे पे जुल्म हो रहा है? नहीं हो नहीं, रहा, बच्चा डिसिप्लिन्ड हुआ। वो उसके ही अकॉर्डिंग, एंड मे बी ही डजंट लाइक इट, maybe he for some time he hates me, but I'm not here to be liked by my child. Like, I'm not here like that na, like he will never hate me as a mother, but maybe in that specific situation when I am reacting towards him in that way कि I am disciplining him, maybe उस वक्त उसको लगेगा कि ये मामा is being, मुझे कहता भी है times, you being rude to me, you being rude to me, तो मैं उससे कहती हूँ कि आई एम नॉट बीइंग रूड, आई एम जस्ट बीइंग योर मदर,
and you need to listen. I'm the parent here. या लेकिन बच्चों को एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, जब बच्चे इस तरह के अल्फाज यूज कर रहे होते हैं कि आपने मुझे हर्ट कर दिया या आप रूड हो रहे हो, अगर आप उनको बिठा के उसके मतलब पूछोगे ना, रूड का मतलब क्या है, हर्ट का मतलब क्या है, दे आर गोइंग टू कम अप विथ फनी फनी डेफिनेशंस ऑफ दोज वर्ड्स, दे डोंट नो व्हाट दोज Yeah. वर्ड्स मीन। उन्होंने सुने होते हैं और वो बस बोल देते हैं वैसे, क्योंकि और इंटरेक्शन people घर में interpret और भी लोग भी। नहीं। यस, एंड इट इज नॉट लाइक कि बच्चे आपको हेट कर रहे होते हैं, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं 2 इयर्स से लेके 4-5 इयर्स तक, उनको आप 10 मिनट बाद पूछो क्या हुआ था, उनको नहीं याद होगा। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन जस्ट टू शेयर, क्योंकि यहाँ पे जिक्र आ गया कि जब बच्चे को आप किसी अच्छे काम के लिए रिवॉर्ड करते हो और आपको कहा जाता है कि देर एंड देन रिवॉर्ड करना है, आपने 2 दिन बाद जाके उसको रिवॉर्ड नहीं करना है। क्यों? उस बच्चे को याद ही नहीं होगा मैंने क्या किया था। हम्म। सिमिलरली उसको अपना ना अच्छा बिहेवियर याद होगा ना बुरा याद होगा, अनलेस एंड अनटिल आप उनको देर एंड देन रिवॉर्ड नहीं देते हो। तो इट हम्म। इट गोज ऑन लाइक दिस, बच्चे को नहीं याद रहता। तो ये चीज के पेरेंट्स अक्सर ये बोलते हैं, जैसे अभी तुमने भी बोला कि शायद वो मुझे कभी कभी हेट भी करता होगा, बुरी लगती होंगी, ऐसा नहीं है। ये पेरेंट्स हम्म। अपने अंदर एक फीलिंग डेवलप कर लेते हैं, स्पेशली पहले बच्चे के केस में ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चा पेरेंट्स को ये होता है कि हम्म। हम वी आर गोइंग टू बी द बेस्ट एवर पेरेंट्स। बेस्ट एवर हम्म। पेरेंट्स का मतलब ये नहीं है कि आपने बच्चे की हर नीड तो पूरी करनी है एज पेरेंट्स, हर ख्वाहिश भी पूरी करनी है। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन नीड एंड ख्वाहिश। तो जब ख्वाहिशात पूरी करने पे आ जाते हैं तब मसाइल शुरू हो जाते हैं, क्योंकि हर वक्त हर ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती। तो ये हम्म। वाली बात है। दूसरा एक और जो इशू आता है, पेरेंट्स को ये भी डर स्टार्ट हो जाता है कि अगर हम बच्चे को मना करेंगे तो बच्चा टैंट्रम थ्रो करेगा और हम परेशान होंगे। तो इट बिकम्स टू वे थिंग, कि बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं, तो वो टू अवॉइड द कॉन्फ्लिक्ट, टू अवॉइड द कन्फ्रंटेशन, पेरेंट्स गिव इन कर देते हैं कि हाँ भाई ठीक है, खैर है, कोई बात नहीं, बच्चा है, बड़ा होकर सीख जाएगा। ये जुमला हम्म। इतना खतरनाक है कि बच्चा बड़ा होके सीख जाएगा, कि मैं आपको बता नहीं सकती। बच्चा बड़ा होके नहीं सीखेगा, उसके बिहेवियर पैटर्न्स फिक्स हो जाएंगे। वो ना सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसकी आने वाली जिंदगी में इनडिसिप्लिन, उसको अथॉरिटी को रिस्पेक्ट करना नहीं आएगा, रूल्स को फॉलो करना नहीं आएगा। अब आप इमेजिन करें एक बच्चा जो कि बड़ा हो गया, वो अथॉरिटी को रिस्पेक्ट ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं, हमेशा पेरेंट्स उसकी बात मान रहे हैं, वो इनडिसिप्लिन्ड है, ना टाइम पे उठ रहा है, ना टाइम पे सो रहा है, ना उसको इस चीज का एहसास है। उसकी फॉल्ट किस पे जाएगी? अगेन पेरेंट्स पे। क्या तब पेरेंट्स ब्लेम लेंगे? तब नहीं लेंगे, तब उनको एक अलग तरह की मसाइल शुरू हो जाएंगे। टू अवॉइड एक्चुअली ऑल दिस। यहाँ पे मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी कि हम्म। अभी हम लोग जैसे मैं यू नो दैट आई एम रनिंग अ स्कूल राइट नाउ। सो हम्म। इसमें होता ये है कि जब हमारे पास बच्चे आते हैं ना छोटे, जैसे जूनियर स्कूल के बच्चे हो गए, जैसे ग्रेड 1 ऑनवर्ड्स, ग्रेड 6 तक 5 तक, तो इसमें पेरेंट ना बहुत ज्यादा, बहुत मुझे लगता है बच्चों से ज्यादा ना पेरेंट सेंसिटिव है। बच्चों को शायद एक दिन बाद याद भी नहीं रहता कि उनको किसी चीज पे किसी ने कुछ कहा था, डांटा था। टीचर की डांट की वैल्यू नहीं छोड़ी पेरेंट्स ने। उसका रीजन ये है कि उन्होंने बच्चों को ये बता दिया कि हम नहीं डांटते अपने बच्चों को, तो टीचर्स भी ना डांटे। टीचर्स हम्म। आजकल के तो टीचर्स डांटते तो है ही नहीं ना, आजकल के टीचर्स भी तो वैसे ही मतलब हम उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से करवाई जाती है, उनकी उनकी बेसिक एथिक्स में ये होता है कि यू आर नॉट गोइंग टू रेज योर वॉइस ऑन द चाइल्ड, यू आर हम्म। नॉट गोइंग टू यूज अब्यूसिव लैंग्वेज। तो इस तरह के तो कुछ भी नहीं होता टीचर्स की तरफ से। लेकिन अगर टीचर थोड़ा सा बच्चे को उसकी स्टडीज से रिगार्डिंग या उसके बिहेवियरल इशू से रिगार्डिंग थोड़ा सा डिसिप्लिन करना चाहेंगे, तो भी पेरेंट्स एट टाइम्स नहीं समझते। जूनियर स्कूल की मैं बात करूं, और इस पे बड़े इतराज होते हैं, और मैंने इस तरह के बहुत सारे इश्यूज डील किए हैं कि टीचर्स टीचर्स की फॉल्ट है। और फिर होता हम्म। ये इवेंचुअली कि वही बच्चा जब सीनियर साइड पे चला जाता है, और यही और उस वक्त उसका पेरेंट उसको घर पे डिसिप्लिन करना चाहता है कि अब ये बड़ा हो गया है, ये शुड बी डिसिप्लिन राइट नाउ। हम्म। तो वो बच्चा, उसका तो डेवलपमेंट हो गई हुई है। अब हम्म। वो डिसिप्लिन घर पे नहीं हो सकता। अब वो देखता है कि वो अपने पेरेंट्स के साथ भी फिर थोड़ा सा उस तरह से बिहेव करता है। तो फिर पेरेंट आके हमें ये तक कहते हैं कि ये तो हमारी भी नहीं सुनते, ये तो हमारी भी नहीं हम्म। सुनते। तो ये मुझे लगता है
कि ये भी एक इशू है जो हमारे जैसा पेरेंट, जो एक मिलेनियल पेरेंट है, या हमसे थोड़े थोड़े पुराने पेरेंट्स जो है, वो ये इशू अब के बच्चों के साथ, जिनके बच्चे अल्फा और जेन जी के बच्चे हैं, ये हम्म। वो हम्म। फेस कर रहे हैं ये इश्यूज। तो डेफिनेटली कर यस रहे टू हैं। राइट। हम्म। हाँ। हम्म। और इसमें एक और बात ये भी होती है कि जो अभी जिस तरह सारा जिक्र किया ये बिहेवियर पैटर्न्स का, बच्चों को ये भी पता चल जाता है कि घर में तो वी आर गोइंग टू इजीली गेट अवे, हम मम्मी को ये बोल देंगे, हम अब्बू को ये बोल देंगे, वो हमें कुछ नहीं बोलने वाले। जब स्कूल में टीचर थोड़ी डिसिप्लिन करना शुरू करती है तो बच्चों में थोड़ा सा डर पैदा होता है एट टाइम्स, डिपेंडिंग कि टीचर किस तरीके से उनको लेके चल रही है। लेकिन अदरवाइज जब उनको ये लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसिप्लिन कर रही है हमें टीचर, तो रेजिस्टेंस आ जाती है, फिर शिकायत घर जाती है, फिर पेरेंट्स आते हैं, फिर वो पैटर्न भी डेवलप हो जाता है कि हमें टीचर कुछ कहेगी तो हम अम्मी अब्बू को ले आएंगे। सो और ये बहुत बेसिकली ज्यादा बच्चे, होने लग गया है अब। हाँ, बच्चे क्योंकि दे आर फाइंडिंग अ वे आउट, उनको वे डिसिप्लिन की आदत ही नहीं है, उनको अथॉरिटी की आदत ही नहीं है, तो वो वे आउट कैसे ढूंढते हैं? पेरेंट्स को जाके शिकायत लगाते हैं, पेरेंट्स पहुंच जाते हैं स्कूल कि भाई कैसे टीचर ने सख्ती से कह दिया, कैसे ये हो गया, कैसे हो गया। यहाँ पे मैं एक बहुत मजेदार एग्जांपल कोट करूंगी। व्हेन आई वाज टीचिंग इन अ स्कूल, अपार्ट फ्रॉम द काउंसलिंग थिंग, मैंने क्या किया, मैं क्लास टीचर थी तो कुछ बच्चे अक्सर होमवर्क नहीं करके आती थी, तो मैंने क्या किया कि मैं एक शीट्स बना लेती थी, उसमें मैं कहती थी राइट योर नेम एंड द डेट, जिस डेट का होमवर्क नहीं किया, एंड राइट गिव मी द रीजन। अब बच्चे क्या करते हैं, सुबह सुबह जब आप कॉपीज कलेक्ट कर रहे होते हो तो मैम होमवर्क नहीं किया। अच्छा बेटा क्यों नहीं किया? मैम मेरे सर में दर्द था, मैम मैं बाहर चली गई, अम्मी घर पे नहीं थी, तो मैंने ये किया, मैंने वो किया। अच्छा, अब जबानी सुनने में मैंने पैटर्न क्या नोट किया कि दे इजिली जस्ट गेट अवे, कि उन्होंने कुछ भी रीजन बोला और मैंने अच्छा कह के कह दिया कि चलो ठीक है कल कर लेना, या शाम तक कर लेना, या ब्रेक में कर लेना, वट। मैंने क्या कहा, आई मेड देम राइट डाउन द रीजन। अब रीजंस बहुत फनी फनी होते थे। एक रीजन मुझे आज तक याद है, एक बच्ची ने मुझे ये बोला कि मेरी अम्मी बीमार थी और मैं अब्बू के लिए खाना बना रही थी। क्लास 5 की बच्ची। ओके फाइन, बहुत अच्छी बात है। और उसकी मदर मेरे ही स्कूल में टीचर थी, जूनियर सेक्शन में। अच्छा चलो सही है, बहुत अच्छी बात है। व्हेन आई आस्क्ड हर टू राइट दिस रीजन डाउन, उसने नहीं लिखा ये रीजन। सिमिलरली और बच्चियां भी थी जिनके और रीजंस थे, उनको जब रीजन लिखने को बोला गया कि सर में दर्द था, क्योंकि मैंने उनको ये कन्वे किया, ओके आपके सर में दर्द था बेटा, 2 दिन पहले भी आपके सर में दर्द था, आई एम गोइंग टू कन्वे दिस टू योर पेरेंट्स कि आपके सर में दर्द है, अब मुझे लिख के दे दें। उन बच्चों ने नहीं लिखा। तो दिस वॉज माई वे ऑफ डिसिप्लिनिंग देयर बिहेवियर थ्रू अ टेक्निक, जिससे उनको ये भी ना लगे कि मैं उन पर अथॉरिटी एक्सरसाइज कर रही हूँ या उनको मैं सख्ती से डिसिप्लिन कर रही हूँ। आई जस्ट मेड देम रिस्पॉन्सिबल कि जो बोल रहे हो वो लिख के दे दो, ताकि मैं पीटीएम पे पेरेंट्स को दिखा सकूं, या अदरवाइज अगर मुझे लग रहा है कि कंसर्न बहुत ज्यादा सीरियस है, ग्रेव है, तो मैं पेरेंट्स के साथ डिस्कस कर सकूं। तो दिस वॉज द लास्ट डे के उन बच्चियों ने जिनको मैंने ये कन्फ्रंटेशन के लिए पेपर दिया, उनका होमवर्क जो था दोबारा नहीं हुआ कि उनका होमवर्क ना हुआ हो। बाकी नए बच्चे आ सकते थे, लेकिन उनको ये कन्वे हो गया कि मैम ये करती हैं और अब हमने ये नहीं करना, और पेरेंट्स को भी हम नहीं ला सकते क्योंकि ऑब्वियसली वो रीजन जो दे रहे थे वो एक गलत रीजन था, तो वो पेरेंट्स को भी नहीं ला सकते थे कि टीचर ने बोला है। लेकिन ऑटोमेटिकली उनका बिहेवियर ऐसे सही हो गया। लेकिन हाँ, परमिसिव पेरेंटिंग की जहां हम बात करते हैं तो हमने ये ध्यान रखना है कि जब हम बच्चे को कन्फ्रंट नहीं करवा रहे और हम डर रहे हैं कि बच्चा जब कन्फ्रंट करेगा तो वो शोर डालेगा और हम भी तंग होंगे, और हम गिवन कर रहे हैं उसकी नीड्स और डिजायर्स में, तो हम बच्चे को खराब कर रहे हैं। हम बच्चे के पेरेंट्स बच्चे के दुश्मन नहीं है, बच्चा आपका दुश्मन नहीं है, आप एक टीम हो। अब कैसे लेके चलना है, मैं ये कहती होती हूँ हमेशा पेरेंट्स को जब मेरे पास वो इश्यूज के साथ आते हैं, कि यू हैव टू हैव द रिमोट इन योर हैंड। जब आप बच्चे को रिमोट कंट्रोल दे देते हो तो क्या होता है, बच्चा आपको अपने हिसाब से कंट्रोल करने लग जाता है, एंड यू लूज द अथॉरिटी एज पेरेंट्स। तो आपको बीइंग अ पेरेंट अथॉरिटी लूज नहीं करनी ओवर द चाइल्ड। अगर बच्चे को सपोर्ट प्रोवाइड करना, वार्मथ प्रोवाइड करना, नर्चरेंस प्रोवाइड करना, उसकी डिजायर्स नीड्स पूरी करना आपका काम है, तो बच्चे को डिसिप्लिन करना भी आपका काम है। और डिसिप्लिनिंग द चाइल्ड इज नॉट बैड, इट इज नेसेसरी। एक लाइफ स्किल है जो आपको आनी चाहिए। रिस्पेक्टिंग द अथॉरिटी इज नेसेसरी, क्योंकि बच्चा पूरी जिंदगी 2 3 4 साल का नहीं रहेगा, वो बड़ा होगा।
आगे जाएगा, सोशल लाइफ में स्टेप इन करेगा, आगे जॉब करेगा, किसी भी फील्ड में जाएगा, तो ये बिहेवियर पैटर्न्स उसके टाइम पे ही बिल्ट अप होना बहुत जरूरी है। अब हम कहते हैं कि पेरेंट्स कहते हैं अब हम करें क्या, अब तो ये डैमेज हो चुका है, अब बच्चे को जब भी हम कुछ कहते हैं वही चीज होती है। तो उसके लिए सबसे पहले रिमोट बच्चे से ले अपने हाथ में रखें। दूसरी चीज, ये गिल्ट से निकल आए कि बच्चा हर्ट होता है या बच्चा आपको बुरा समझता है, वो नहीं समझता। अगर वो समझता भी है तो वो 2 दफा समझेगा, 3 दफा समझेगा, चौथी दफा वो खुद सही हो जाएगा। और जब वो डिसिप्लिन में आएगा तो उसको खुद समझ आएगा कि हाँ, डिसिप्लिन में आना कितनी अच्छी बात है। तो ये एक दो चीजें अगर पेरेंट्स एक्सरसाइज कर लें। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक और एग्जाम्पल भी अक्सर अपने क्लाइंट्स को देती होती हूँ कि अगर आपका बच्चा बीमार होता है और डॉक्टर उसको दवाई देता है, दवाई कड़वी है, बच्चे का दिल नहीं कर रहा, ऑब्वियसली बच्चा बीमार है तो उसका वैसे ही कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, तो क्या आप सिर्फ इस वजह से कि आपका बच्चा दवाई नहीं खाना चाह रहा उसको दवाई नहीं देते? यहाँ पे भी आप परमिसिव पेरेंटिंग अप्लाई करते हो? तो जवाब होता है नहीं, दवाई तो देनी है। दवाई देनी है तो फिर दवाई की तरह जब आपने दवाई देते वक्त बच्चे का लिहाज नहीं करना या ध्यान नहीं रखना कि भाई, क्योंकि आपको भी पता है कि दवाई खाएगा तो ही सही होगा। इसी तरह जब आप बच्चे को डिसिप्लिन कर रहे हो, जब आप उसको किसी चीज पे नो बोल रहे हो, मेक श्योर दैट नो मीन्स नो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने बच्चे को ये बोला है कि यू कैन प्ले फॉर 15 more minutes, मेक श्योर कि वो 15 मिनट ही हो। उसके बाद आपने गिव इन नहीं करना बच्चे की ख्वाहिश पे या बच्चे की जिद पे। आपने 15 मिनट बाद उसका गेम बंद करवाना है। उस पे क्या होगा, बच्चा डिसिप्लिन में आहिस्ता आहिस्ता आएगा। एक दफा शोर मचाएगा, 2 दिन मचाएगा, तीसरे दिन वो सेट हो जाएगा। बच्चे को टाइम उनको पे ये आपने, पता होना चाहिए कि हाँ, our parents mean business when they are giving us a time period or a deadline, then they need to meet that deadline basically. हाँ, यस। और दूसरी बात ये होती है कि हमें ये लगता है कि हम बच्चे पे सख्ती कर रहे हैं तो हम जुल्म कर रहे हैं। आप जुल्म नहीं कर रहे हो बच्चे पे। तो ये जो There is a वर्ड्स हम difference रिपीट between करते हैं ना, ये हमें छोड़ने पड़ेंगे कि बच्चा हर्ट हो रहा है हम जुल्म करें, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। आप बच्चे की बेहतरी के लिए ही कर रहे हो। तुमने नोटिस किया जब हम लोग छोटे होते थे ना, ना हम थकते थे, ना हम हर्ट होते थे, ना हमारे सर में दर्द होता था। हमें पता ही नहीं था कि दर्दें क्या होती हैं, मतलब दर्द हाँ, भी होता होता है। अब हाँ, के बच्चों की सारी टर्मिनोलॉजीज का पता है। हमारी मेंटल हेल्थ सफर करिए, विच आई एग्री, मेंटल हेल्थ पे काम जरूर होना चाहिए। हम्म, हमारी मेंटल हेल्थ इसलिए जरा बेहतर की बात की आजकल के बच्चों से, क्योंकि हमारे पास सोशल मीडिया नहीं था ना, हमारे पास ये हम्म, चीजें नहीं थी देखने के लिए अपने, हमारा माइंड जो है वो थोड़ा सा पोल्यूट करने के लिए कि अच्छा मैं रोज देख रही हूँ कि 10 इन्फ्लुएंसर्स हैं, कोई इन्फ्लुएंसर इटली जा रहा है, कोई यहाँ जा रहा है, कोई वहां जा रहा है, अपने सारे सारे हाँ, बच्चे ले। और मेरे पास वो नहीं था वे आउट। अब के बच्चों के पास ये है, वो अब आपसे ऐसी ऐसी डिमांड्स करते हैं कि आप मुझे। एक और चीज मैंने बहुत ज्यादा नोटिस की है कि मैंने ये भी बहुत देखा है पेरेंट के अंदर, कि पेरेंट ना गिल्टी हो रहा है बहुत ज्यादा चीजों को लेके कि हम्म, वो अपने बच्चों को ये प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है। इट्स ओके, एवरीबडी कैन नॉट एवरी हैव, ये मैं अपने पेरेंट्स को बताती हूँ जो मेरे पास आते हैं, दैट यू हैव every parent has a different plate, and on हम्म, that plate it's a different kind of a serving। हर बंदे की अपनी प्लेट है, उसमें अपनी अपनी सर्विंग्स हैं। हर बंदे ने जिंदगी में वही अपनी सर्विंग एंजॉय करनी है टिल द टाइम दैट पर्सन हम्म, इज हियर, एंड देन वो इवेंचुअली खत्म होगा और जो भी होगा हिसाब। बट जरूरी नहीं है कि आपकी प्लेट, इट्स अ बफे, जरूरी नहीं है कि आपकी हम्म, प्लेट और साथ वाले की प्लेट में एक जैसी चीजें हो या क्वांटिटी सेम हो या कुछ भी। तो हम्म, ऑफ कोर्स ये चीजें हैं। और जितना मैं अभी आपसे डिस्कशन करने के बाद इस चीज को अंडरस्टैंड कर सकी हूँ, वो ये है कि परमिसिव पेरेंटिंग इज बेसिकली कि आपने गिल्टी नहीं होना, आपने गिव इन नहीं करना, और आपने रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखना है हम्म, टिल अ सर्टेन टाइम पीरियड। हम्म, जैसे मैंने अपने बड़े बेटे को कहा है, वो मुझे अक्सर कहता होता है मैं अब बड़ा हो गया हूँ माँ, तो मैं उसे कहती हूँ कि टिल द टाइम यू आर अंडर माई रूफ you're going to follow the rules that I'm going to make in this house। या, और कितने टाइम में वो मुझे कहते हैं when I'm going to turn 18 I'm going to move out। अब ये भी एक कॉन्सेप्ट है जो हमारा नहीं है, हाँ, वेस्टर्न कॉन्सेप्ट, हमारा नहीं है। हम्म, हमारा नहीं है। तो अगर ठीक है, गुड इनफ, मैं उसे ये कहती हूँ गुड इनफ इफ यू कैन बाय अफोर्ड योर ओन हाउस बाय द टाइम यूर 18 लीगली, आई एम नॉट, you're not bound to answer me and you're not bound to follow my rules।
बट यस, तो ये भी एक एस्पेक्ट है हमारे माशरे का जो हमें जहन में रखना चाहिए कि बच्चों को अगर हम्म, आपने इवेंचुअली बड़े होकर भी रूल्स फॉलो कराने हैं और आप चाहते हैं कि वो रूल्स फॉलो करें, तो उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने का। एग्जैक्टली exactly. और वही बात है, ये वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट है, ये पेरेंटिंग स्टाइल ऑब्वियसली हमारा तो है नहीं, ये बाहर का एक पेरेंटिंग स्टाइल है जो हम पढ़ते हैं और फॉलो करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारे मुल्क में कैसे ये हो रहा है। आजकल ये बहुत ज्यादा प्रेवेलेंट है, हर पेरेंट्स ही तकरीबन हर दूसरा पेरेंट आएगा वो इसी परमिसिव पेरेंटिंग का शिकार है। क्यों? वही वाली बात कि गिल्ट आ जाता है, हम बच्चे को सब कुछ प्रोवाइड करें, वो आ जाता है, नो कहेंगे तो बच्चा बुरा फील करेगा, इस तरह की चीजें। और फिर पैटर्न्स दोनों तरफ डेवलप हो रहे हैं, माँ बाप की तरफ भी। माँ बाप ऑब्वियसली जब कंट्रोल लूज कर रहे हैं, अथॉरिटी लूज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली बच्चा अथॉरिटी गेन भी कर रहे हैं ना, कि मैं हम्म। बेशक इन पे हायरार्की में इनसे नीचे हूँ, लेकिन रिमोट कंट्रोल तो मेरे पास है, मैं जो बटन दबाता हूँ मेरे पेरेंट्स वैसे ही करते हैं। तो हमें इस चीज का हम्म। कंट्रोल अपने हाथ में अभी से लेना है, ताकि हम बच्चे को और खुद अच्छे पेरेंट्स भी बन सके, और बच्चे को भी हम एक डिसिप्लिन्ड लाइफ दे सकें, उसको एक स्ट्रक्चर फॉलो करना सिखा सकें। इसके अच्छा। साथ साथ हम वेस्टर्नाइज कॉन्सेप्ट लेके इसलिए नहीं चल सकते कि क्या हम वाकई 18 साल के बाद अपने बच्चों पे किसी भी किस्म की अथॉरिटी नहीं एक्सरसाइज करेंगे? हम ये नहीं कर सकते। सब कॉन्टिनेंट के एशिया के पेरेंट्स ये नहीं कर सकते। तो इसी वजह से अगर आपने एक वेस्टर्न कॉन्सेप्ट उठा ही लिया है कि बच्चे को कुछ नहीं कहना है और हर वक्त आपने सॉरी वाली स्टेट में रहना है और बच्चे को आपने अथॉरिटी बनाना है, तो फिर आप क्या उसको एंड तक पहुंचाओगे? क्या आप बच्चे के शादी करते वक्त उसको डिसीजन खुद लेने दोगे? हमारे तो बहुत ज्यादा मसाइल होते हैं ना, उससे नहीं करनी, उससे नहीं करनी, बहुत सारे इश्यूज होते हैं उसमें। तो अगर आप वहां पे बच्चे को नहीं अपनी अथॉरिटी एक्सरसाइज करने दोगे, आपको याद आ जाएगा कि हम पेरेंट्स हैं, हम बेहतर समझते हैं, तो वो बचपन से ही करो ना, मतलब हम्म। एक तरफ रहो। हम्म। तो उसके लिए बिल्कुल। जरूरी है कि आप टाइमली हर चीज बच्चे को सिखाते जाएं। लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये लगता है कि जो एक डिसीजन मेकिंग पावर होती है ना, वो आपको बच्चे के अंदर, साथ साथ ये भी नहीं कि बिल्कुल ही बच्चा आपके डिसीजंस पे चले, हम्म। आहिस्ता आहिस्ता करके डिसीजन पावर थोड़ी थोड़ी उनके अंदर, डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है वो डेवलप भी करने चाहिए। छोटी हम्म। मोटी एक्सरसाइज करा के, छोटी मोटी चीजों में उनके डिसीजंस को, उनके ओपिनियंस को वेटेज देके, हम्म। अगर हम बहुत ज्यादा भी, मुझे लगता है कि हम उनको बिल्कुल, तो इस तरह तो फिर वो बिल्कुल वो उसमें चले जाएंगे शेल में के, और एक हाँ। प्रोटेक्टिव शेल में कि सिर्फ हमारे पेरेंट्स ही हैं हु कैन, यू नो, दे आर गोइंग टू टेक हम्म। द डिसीजन। हमने किस स्कूल जाना है, किस यूनिवर्सिटी जाना है, किस कॉलेज जाना है, हम अपनी मर्जी से हम्म। सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो इस इन चीजों में हमें कुछ मुझे ये लगता है कि आपको एज अ पेरेंट थोड़ा सा ये देखने की जरूरत है कि आप लोग अपनी बैटल्स को ना पिक एंड चूज करें। हम्म। आप अपने बच्चों को एम्पावर करें, लेकिन उनको सिर्फ ये बताना जरूरी है कि इस रिश्ते में पेरेंट कौन है। ओके, जहां हम बात कर रहे हैं कि परमिसिव पेरेंटिंग जो है उसकी हमने डाउन साइड्स की बात की, तो एक सवाल ये बनता है कि क्या इसकी कोई पॉजिटिव साइड भी है? जी बिल्कुल है। और क्यों है? कि आप बच्चे को बहुत ज्यादा सपोर्ट जब प्रोवाइड कर रहे हो, उसको बहुत ज्यादा प्यार से रख रहे हो, उसके साथ फ्रेंड्स बन के रह रहे हो, तो ऑब्वियसली इस सब चीजों की बच्चे पे अच्छा असर भी जा रहा है, तो डेफिनेटली यस, बच्चे की सेल्फ एस्टीम बहुत अच्छी होती है। इस तरह के बच्चे जो परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल के साथ आते हैं, उनमें क्रिएटिवनेस बहुत ज्यादा होती है, दे आर वेरी क्रिएटिव, वो एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये चीजें भी, इसकी हम पॉजिटिव साइड्स को भी देखना हम जरूरी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है या पॉइंट क्या है इस सब कॉन्वर्सेशन का, इस सेशन का, कि आपने एज पेरेंट्स अपनी अथॉरिटी लूज नहीं करनी बच्चे पे। जहां पे आपको लगता है कि आपको फर्म होना है, यू नीड टू बी फर्म विदाउट फीलिंग गिल्टी कि आपका बच्चा बुरा फील कर रहा है या आप खुद बुरा फील कर रहे हो। तो आपको इस चीज से स्टेप आउट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसके साथ साथ जब हम इसकी डाउन साइड्स देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि लॉन्ग रन में बच्चे पे क्या इसका बुरा असर पड़ रहा है। तो जब बुरा असर ज्यादा पड़ रहा है और वो लॉन्ग टर्म है, तो पेरेंट्स को फर्म होना अभी आज जरूरी है। आपको इस इंटेलिजेंस से निकलना पड़ेगा कि हमने अपने बच्चे की हर ख्वाहिश, हर जरूरत देयर एंड देन पूरी करनी है। आप बच्चे को रिवॉर्ड देयर एंड देन करें, लेकिन उस पे आपने कंट्रोल एक्सरसाइज करना है, जस्ट टू मेक श्योर कि रिमोट आपके हाथ में रहे। इफ यू कीप दिस थिंग इन माइंड, आई एम श्योर कि बच्चे पे आप फर्म भी होंगे। बच्चे पे जब कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे फॉर द सेक ऑफ डिसिप्लिनिंग द चाइल्ड, नॉट टू शो योर अथॉरिटी। अब हमने ये भी देखना है कि जब हम बच्चे को डिसिप्लिन कर रहे हैं,
तो हम एज पेरेंट्स डिसिप्लिन करें। और डिसिप्लिन करने के तरीके क्या है, जैसे मैंने एक छोटी सी एग्जांपल दी, जब क्लास में मेरे पास बच्चियां कुछ आ रही थी और होमवर्क करके नहीं आ रही थी, मैंने उन पे अथॉरिटी इस तरह एक्सरसाइज नहीं की कि आई एम योर टीचर, आई एम दी अथॉरिटी, यू हैव टू डू योर होमवर्क। मैंने उनको एक सिंपल, एक रिस्पॉन्सिबल देने के लिए उनको एक पेपर दे दिया कि लिख के दे दो। उससे क्या हुआ कि मेरा मैसेज फर्मली कन्वे हो गया कि टीचर इज फर्म। अब वो हमें मार्जिन नहीं देंगी या एक्सक्यूज नहीं देंगी कि चलो ठीक है कल होमवर्क करके ले आओ, हमें होमवर्क करके लाना है। लेकिन मैंने उनको कुछ डंडे के जोर पे ये नहीं करवाया। तो आपने अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कैसे करना है वो भी बहुत जरूरी है। बेसिकली वही बात है कि हमें अपनी बैटल्स को पिक एंड चूज करना है। हम हम्म। हर बात पे उनको मना नहीं कर सकते और हर बात पे हम यस भी नहीं बोल सकते। हम्म। सो वी नीड टू सी वे वी हैव टू गिव देम द मार्जिन टू बी क्रिएटिव एंड चूज देयर ओन पाथ, एंड वे वी हैव टू टेल देम कि दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट डन। ये तो हमारे अपने रिलीजन में भी है, अगर हम रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि हमें उनको हम्म। गाइड करना है। बेसिकली हमारे रिलीजन में सजा और जजा का कॉन्सेप्ट क्यों है, इसलिए तो नहीं कि अल्लाह ताला हम्म। को बहुत खुदा ना खास्ता तौबा इस्तगफार को बहुत हमें प्यार नहीं करते। वो हमें प्यार करते हैं, वो हमें हम्म। 70 माओं से ज्यादा करते हैं, उनसे ज्यादा प्यार हम्म। कोई नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने कुछ चीजों से मना किया है। मना क्यों हम्म। किया है? इसलिए नहीं कि वो अगर हम करेंगे तो वो दोजख में डाल देंगे, ये नहीं। मना इसलिए किया है क्योंकि वो अपनी अथॉरिटी को एडमिनिस्टर करना चाह रहे हैं ना, कि ये मेरा हम्म। बंदा कितनी मेरी बात मानने वाला है, अगर हम उस हम्म। तरीके से भी उसको देखें तो ऑफ कोर्स पेरेंट को भी इसी तरह से है। मैं थैंक यू सो मच, है ना, इट वाज सच अ लवली सेशन विद यू, बट आई जस्ट वांट टू नो दैट सिंस वी टॉकिंग अबाउट परमिसिव पेरेंटिंग, is there an aggressive parenting as well? Does that term exist? यस डेफिनेटली, अगर हम ये कहें कि परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो चाइल्ड ड्रिवन पेरेंटिंग स्टाइल है, तो एक और इसके बिल्कुल ऑपोजिट पेरेंटिंग स्टाइल आता है जो कि पेरेंट ड्रिवन है, जिसको हम आम जबान में कह सकते हैं एग्रेसिव पेरेंटिंग स्टाइल। तो यस, देयर इज दैट पेरेंटिंग स्टाइल एज वेल। तो वो, लेकिन हम उसको एक डिफरेंट सेशन में कवर करेंगे। वो एक बिल्कुल ही, शायद आजकल के पेरेंट्स वो इतना एक्सरसाइज नहीं करते, हमारे पेरेंट्स करते थे या उनके पेरेंट्स करते थे, तो अब वो एक तरह का ऑब्सोलीट हो चुका है। लेकिन यस, इट डज एग्जिस्ट कि जिसमें सिर्फ अथॉरिटी पेरेंट्स की है और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव्स भी हैं, तो उसको भी डिस्कस किया जा सकता है। लेकिन फिल वक्त जो हमारा चैलेंज है बहुत ज्यादा आजकल के पेरेंट्स का, वो हम परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल में फॉलो करते हैं। तो इस पे हम जितनी बात करें उतनी कम है। आई एम श्योर कि अगर लोगों को हमारी इस वीडियो से फायदा हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा और एग्जांपल्स और अपने एक्सपीरियंसेस के साथ आएंगे। तो आई जस्ट होप कि हम उनको अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सके, उनको सपोर्ट प्रोवाइड कर सके। और लेट्स जस्ट होप कि ये जो हमारा आज का सेशन है वो लोगों के लिए बेनिफिशियल हो। इंशाल्लाह। एंड आई जस्ट वांटेड टू कंक्लूड दिस थिंग। बेसिकली हमारा जो ये सेशन करने का मकसद है, ये सिर्फ ये है कि हम आजकल के बच्चों को और आजकल के पेरेंट को एक हैप्पी फैमिली यूनिट प्रोवाइड करें, मैं हेल्प कर सके कि हाउ दे एग्जैक्टली। कैन कोएग्जिस्ट एज ए हैप्पी फैमिली। ना पेरेंट बर्डनाइज हो, ना बच्चा बहुत ज्यादा डिमोरलाइज्ड और एग्रेसिव हो, एंड दे कैन हैव अ, बिकॉज अब की सोसाइटी इज अ वेरी कॉम्पिटेटिव सोसाइटी, ग्रेड्स की हम्म। कंपटीशन है, बच्चे बहुत ज्यादा उसमें है, पेरेंट्स अपनी जॉब्स और बिजनेसेस को लेके बहुत ज्यादा एग्रेसिव और कॉम्पिटेटिव हैं। सो वेन एवर दे ऑल कम बैक होम, देर इज अ, either they don't talk to each other at all, everybody हम्म। is on their own devices and nobody wants to bother the other one, or the other option is that when they talk they either fight, yell or scream at each other. ये अब हम्म। बहुत ज्यादा हो गया है। So if we'll understand each other, if we'll understand the generation that we are dealing with, and this will help all of us. रेस्ट आपको, मैं हमेशा ये कहती हूँ, मैं अपनी हर वीडियो का एंड और हर मीटिंग का या सेशन का एंड जब मैं पेरेंट्स से करती हूँ, मैं यही करती हूँ उसमें कि हर पेरेंट पैदा तब होता है जब उसका बच्चा पैदा, एग्जैक्टली। और वो अपने बच्चे के साथ साथ बड़ा होता है। हम पहले 40 डेज के बच्चे की नींद का पैटर्न सेट करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा बच्चा बड़ा होता है, फिर उसके और इश्यूज हैं,
फिर और इश्यूज हैं, फिर और इश्यूज हैं। आपको लगता है चलना सीख जाएगा तो मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी, फिर वो चलने लग जाता है, फिर वो आपके और मसले शुरू हो जाते हैं, वो हर जगह जाके घुसता है। फिर जब वो आपको लगता है कि थोड़ा सा समझ बोलने लग जाएगा तो मेरी जिंदगी आसान, जब वो बोलने लगता है तो आपको लगता है कि बहुत बोलता है, इतने सवाल करता है। और फिर इवेंचुअली ऐसे करते करते फिर आपको लगता है यार टीन एजेस में चला जाएगा तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगी कि अपने काम खुद कर लेगा। टीन एजेस के अपने बहुत बड़े मसले मसाइल हैं जो कि हम इवेंचुअली डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह। हम साथ साथ उनके ग्रो कर रहे हैं, हम साथ साथ सीख रहे हैं। आप भी हमारे साथ मिलके सीखें। लेट्स लर्न टुगेदर हाउ टू हैव अ हैप्पी फैमिली, हाउ टू बी कंसिडरेट पेरेंट्स, हाउ टू बी गुड पेरेंट्स, जिसमें हम अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाएं, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाएं। और लेट्स डू इट ऑल टुगेदर। और अगर आपकी कोई सजेशंस हैं, आप कोई कमेंट करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, अपनी सजेशंस दे सकते हैं। अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं, अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं। हम वील ट्राई टू गेट बैक टू यू। और नेक्स्ट सेशन फिर हम अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे, और जैसे भी प्लान करेंगे जो भी टॉपिक होगा आपको हम पहले से बता देंगे। तो अगर आपको वो रेजोनेट करता हो तो जरूर देखें, जरूर प्रोफाइल विजिट करें। दोनों प्रोफाइल जो है वो इधर मेंशन है, मिस हिना की भी मेरी भी। आप लोग वहाँ विजिट कर सकते हैं और हमें अपने सजेशन से आगाह कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मिस हिना, थैंक यू फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, एंड Welcome. सॉरी फॉर नॉट हैविंग अ लाइव सेशन because Miss Hina is currently in a different country, and that does not permit us to have a live session right now. So, inshallah, we'll try to solve this issue as well. Thank you so much and take care. Allah Hafiz. Allah Hafiz.